chapter third, permeability and shear strength of soil. So moving further to the introduction of this chapter, so this says any any given soil mass consists of solid particles of various sizes within the connected void spaces. The continuous void spaces in soil allow water to flow under gravity. So these void spaces allow water to flow under the effect of gravity, which pulls everything towards it. So this flow of water is very much important with respect to such structures such as dam, foundation, and settlement consolidation. So yeah. So definition of permeability. Let's see here. So permeability of soil is defined as the property of soil which permits flow of water or any other liquid through its interconnected voids under gravity. So permeability क्या है? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है सोइल की जो पानी को voids के, ये देखो ये जो voids है यहाँ पे, ये जो voids है ऐसे, ये जो दिख रहे हैं हमें, ये voids, इसके अंदर से जो flow होता है water का, वो करने देने के लिए जो जो फ्लो होता है ये उसको अलाउ करने के लिए जो अलाउ करता है उसको कहते हैं परमेबिलिटी, यानी जो प्रॉपर्टी इसको अलाउ करती है कि आगे आगे मूव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड परमेबिलिटी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. अभी ग्रेविटी है नीचे तो ऑफकोर्स ये नीचे ही जाएगा, राइट? सो इन अदर वर्ड्स परमेबिलिटी इज द केस इन विथ विच वाटर कैन फ्लो थ्रू सॉइल. तो वही क्या दैट इज ऑल सेड हियर दैट परमेबिलिटी ऐसी केस है जिसमें पानी सॉइल के अंदर से मूव हो सकता है, लाइक इट इज परमेएबल. तो फ्लोइंग ये हमारा ये है, तो यहाँ से मतलब ऐसे पानी घुसा, इन्होंने जैसे दिखाया है फ्लो ऑफ वाटर ऑफ लिक्विड, ऐसे घुसा अंदर से मस्त और यहाँ से निकल गया इसके. और दूसरी जो इसका ये हुआ तो वो वही यहाँ से निकला, तो ये सॉइल पार्टिकल्स है, राइट? सो इम्पोर्टेंस ऑफ परमेबिलिटी. तो ये हमारी परमेबिलिटी थी, देखो यहाँ से कैसे ये अंदर से निकलता है. दिस इज द थिंग, दिस इज वाटर टेबल एंड ये पानी अंडर वाटर भी इसकी वजह से हमने सुना है ग्राउंड वाटर, तो वो यही रहता है परवियस सॉइल ऑल दैट. सॉइल परमेबिलिटी, तो इसके कुछ फैक्टर्स है, लाइक सॉइल हाईली परवियस होता है जब पानी उसमें से बहुत इजीली फ्लो हो सकता है. और जो इन एन इम्पर्वियस सॉइल मतलब जहाँ से पानी नहीं फ्लो हो सकता, परमेबिलिटी बहुत कम होती है और वाटर फ्लो नहीं कर सकता. जैसे क्लेज, ग्रेवल्स में ग्रेवल्स आर हाईली परवियस, क्लेज आर impervious, like very less pervious. रॉक्स आर impermeable, रॉक्स की में से पानी नहीं फ्लो हो सकता. और इसका जो स्टडी है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है सॉइल मैकेनिक्स में. तो इम्पोर्टेंस ऑफ परमेबिलिटी. Now we have importance of permeability in engineering problems. So permeability, how is permeability important while doing engineering works? So it is used to calculate the seepage to the body of earthen dams and stability of slopes. So जो earthen dam होते हैं उसमें से पानी कहाँ से कैसे निकल रहा है, and the calculations for the main construction and all the maintenance, it is done. The permeability is like determined to know the features about that. And next, regulation of uplift pressure under hydraulic structure and safety against piping. So when hydraulic structures are built, so the uplift pressure due to water is checked and permeability is checked to like to get a safe structure and also safety against piping. So groundwater flow towards wells and drainage of soils. So how is groundwater flowing towards wells and drainage of soil, that is also determined, and to like know the groundwater flow in which direction it is there. So next one, estimates of loss of water by seepage or percolation, especially in the unlined irrigation channel. So there is actually a lot of loss of water, बहुत पानी lose होता है seepage and percolation की वजह से. So उसका पता लगाने के लिए भी permeability काम की है कि how the water is loosed and all that. So determination of rate of settlement of saturated compressible soil layers. So the rate of settlement of saturated compressive soil layers.
So the soil layers will we can determine the rate of settlement. How are they settled, and how the soil layers are settled according to that. And next, suitable for conal beds, embankment to check the loss of water by percolation through other dams. So डैम्स में क्या होता है ना, पानी यहाँ से वहां निकल जाता है, तो जो स्ट्रक्चर है उसका परमेबिलिटी चेक करते हैं कि इससे ज्यादा पानी पानी परकोलेट नहीं होना चाहिए, seepage कम होना चाहिए. High permeability will be useful for structural foundation, rail embankments and subgrade off road because pervious soil keep the structure stable during rain and thaws. तो जो अगर पानी में अगर सॉइल की जो परमेबिलिटी यानी जो फ्लो ऑफ वाटर है अगर वो ज्यादा रहा तो वो अच्छी बात है किसके लिए, स्ट्रक्चरल फाउंडेशन के लिए, जो हमारे स्ट्रक्चर रहते हैं उनके फाउंडेशन के लिए. क्यों? क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर होगा हमारा उसको स्टेबल रखेंगे रेन एंड थॉज, जो भी रेनिंग के टाइम पे वो स्ट्रक्चर सेफ रहेगा, सेफ कंडीशन में रहेगा, राइट. सो नाउ लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो. सो द फ्लो of water through soil may be laminar or turbulent, linear or eddy. In most of practical flow problems in soil, the flow is laminar. All right. तो जो ज्यादातर जो फ्लो होता है सॉइल का वो लैमिनार की तरह होता है. तो लैमिनार फ्लो क्या है? तो लैमिनार फ्लो में एक ऐसी कंडीशन जिसमें वाटर पार्टिकल्स एक डेफिनाइट पाथ और पैरेलल मूव करते हैं. लैमिनार फ्लो पार्टिकल्स, water particles, remember water particles move parallel without crossing the path of other particles is known as laminar flow. So what is laminar flow? In which water particles move in a definite path, moving parallel to each other without crossing each other, right? पैरेलल मूव करेगा तो एक दूसरे को थोड़ी क्रॉस करने वाली, राइट. आगे लिख देना. देन टर्बुलेंट फ्लो, द फ्लो इन विच पार्टिकल्स ऑफ वाटर डू नॉट फ्लो इन अ डेफिनेट पाथ, यानी वो एक सिंगल पाथ में फ्लो नहीं करते. वो फ्लो के टाइम पे उनके पाथ क्रॉस हो जाते, ये यहाँ निकल जाएगा वो वहां निकल जाएगा, ऐसा. इसलिए दे डू नॉट मूव इन अ डेफिनेट पाथ, दे मूव इन अ like they move in a path which crosses each other, and it is known as turbulent flow. So yeah, this was uh, laminar, this is turbulent. And now Darcy's law. So as we see here, Darcy's law of permeability. Darcy's law demonstrated experimentally that for laminar flow conditions in a saturated soil, so for a laminar flow यानी जो parallel flow है उसके लिए जो rate of flow है, जो रेट से पानी फ्लो हो रहा है वो, और या फिर डिस्चार्ज पर यूनिट, रेट ऑफ फ्लो यानी डिस्चार्ज पर यूनिट, वो प्रोपोर्शनल है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के लिए. तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है हमारा? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यानी जो पानी हमारे ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे से फ्लो होता है, मतलब वो जो स्लोप है हमारा, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे से जो पानी फ्लो होता है वो एक स्लोप में एक नीचे वाली स्लोप में जाता है, जैसे कि नीचे वाले इसमें ऐसा फ्लो होता है. तो डिफाइंड एज द स्लोप द फ्री वाटर सरफेस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. तो फ्लो की डायरेक्शन में वो स्लोप बनाता है, तो दैट इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. एंड इट इज सो डार्सीज क्या बोलते हैं कि लैमिनार फ्लो कंडीशन के लिए जो रेट ऑफ फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के लिए. हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मतलब क्या? पानी नीचे जा रहा है. रेट ऑफ फ्लो कैसा है? तो क्या होता है ना, रेट ऑफ फ्लो भी बढ़ेगा जैसे पानी नीचे जाएगा. क्यों बढ़ेगा? ग्रेविटी की वजह से. बहुत सिंपल निकाला था इसमें कि अभी जैसे जैसे पानी नीचे नीचे जाएगा वैसे वैसे ग्रेविटी की वजह से रेट ऑफ फ्लो यानी पानी का जो स्पीड है फ्लो का वो भी बढ़ते जाएगा, राइट. सो डार्सी ने क्या बोला था? द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू porous media is directly proportional to the head loss and inversely proportional to the length of flow path. तो जो फ्लो ऑफ वाटर है पोरस मीडिया यानी परमेएबल सॉइल के थ्रू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हेड लॉस के लिए और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ फ्लो के लिए, यानी लेंथ कम होते जाएगी उसकी जैसे जैसे वो फ्लो नीचे जाएगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट.
discharge velocity, it is the quantity of total. Just a second. Okay, so डार्सी के जो हमारा लॉ था वो यही था, यहाँ पे भी वही लिखा है, होमोजेनियस सॉइल एंड लैमिनार फ्लो कंडीशन। लैमिनार फ्लो कंडीशन एक मेन पॉइंट है, 1856 में वो बताया था। ऑफ रेट टू सॉइल, ऑफ रेट ऑफ फ्लो का उन्होंने एक लॉ बताया था हमें कि लैमिनार फ्लो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के लिए, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से। दिस इज इम्पोर्टेंट, this this is asked many times and this is the formula for it. Q is discharge per unit time, यानी rate of flow। rate of flow क्या होगा, डार्सीज का कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, और उसका आई होगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो हमने स्लोप बताया था, और ए होगा टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मास, सॉइल मास परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। सो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जैसे कि मैंने कहा ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, तो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। Learn about range of validity of Darcy's law before starting coefficient of permeability. Uh, where is Darcy's law valid? So Darcy's law is valid in the steady state. It's laminar flow. Laminar flow, it is only valid in laminar flow. As I told you, in laminar flow, particles move in state condition parallel to each other. And when the soil or the material is 100% saturated, then and flow fulfilling continuity conditions. So the continuity conditions, when they are fulfilled, then only it is valid, and no volume changes occur during. There is no volume changes during the flow, and or as a result of flow. Because of flow, there is no volume changes. Then only this Darcy's law is valid. We have this formula which is important for the numericals. So note this out. So what are the limitations of Darcy's law? So ये जो है ये सब टाइप के सॉइल्स के लिए वैलिड नहीं है। ये सिर्फ क्ले, सिल्ट एंड फाइन सैंड के लिए वैलिड है, जिसमें से जो फ्लो है हमारा वो लैमिनार है, और कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए भी ये नहीं है, एज एक्सट्रीमली फाइन सॉइल के लिए भी नहीं है। एंड फॉर एग्जांपल ग्रेवल, कोर्स सैंड, जो ग्रेवल है, कोर्स सैंड और कोलाइडर क्ले और सिल्ट एक्सेट्रा, उसके लिए वैलिड नहीं होगा ये Darcy's law. It is difficult to predict exact value of Reynolds number. Some of the values demonstrated of in Darcy's laws are valid. तो कोई कोई वैल्यूज जो हमको मिलते हैं Darcy's law से वो वैलिड है। तो जो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर होगा वो यूनिटी से एक तो इक्वल होगा या फिर उससे कम होगा तब तक कि ये वैलिड है। देन इन्होंने Sachdeger's collected data shows that Reynolds number may vary from 0.1 to 75 for Darcy's law. And experimentally, it is found that velocity and gradient relation give idea about laminar and turbulent flow. From there, the validity of Darcy's law can be known. तो एक्सपेरिमेंटली हमको बताया जाता है कि जो वेलोसिटी और ग्रेडियंट रिलेशन आइडिया है लैमिनार टर्बुलेंट फ्लो के बारे में, उसका आइडिया हमें मिलता है, और मतलब वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेलोसिटी एंड ग्रेडियंट रिलेशन। और डार्सीज लॉ की वैलिडिटी भी हमको वहां से पता चल सकती है। एंड अगर बहुत ही डेंस और हाईली कंपैक्टेड क्ले होगा और उसमें वाटर फ्लो नहीं होगा, एंड at all you need until your head gradient reach some particular value. In this respect, no flow has reference to the limit of observation. तो इसमें फिर no flow का हम रेफरेंस ले सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमारे। नेक्स्ट इट इज factors affecting permeability. So factors affecting permeability of soil, तो पहला फैक्टर है particle size. The permeability varies approximately a square of grain size. It depends on the effective diameter of the grain size. तो ये डिपेंड करता है ग्रेन साइज की डायमीटर या फिर पार्टिकल के उस पे। एंड जो कोर्स ग्रेन सॉइल जो होता है उसकी परमेबिलिटी ज्यादा होती है फाइन ग्रेन सॉइल से,
और permeability of coarse sand may be more than 1 million times as much that of clay. तो जो coarse sand है हमारा, coarse sand की permeability 1 मिलियन यानी 10 लाख टाइम ज्यादा है क्ले से, राइट? याद रखो, कोर्स ग्रेन सॉइल की परमेबिलिटी 1 लाख टाइम्स ज्यादा, 10 लाख टाइम्स ज्यादा है क्ले से। एंड कोर्स ग्रेन सॉइल में परमेबिलिटी ज्यादा होती है, फाइन ग्रेन सॉइल में परमेबिलिटी कम होती है, राइट? voids ratio, increase in voids ratio cause increase in permeability as the area available for flow increases. तो अभी सीधी सी बात है, जो voids है अंदर के जो gaps है, अगर वो gaps में के अगर वो gaps ही बढ़ गए तो obviously flow तो ज्यादा ही होगा ना, right? Properties of pore fluid, permeability is directly proportional to the unit weight of pore fluid, यानी जो पोर्स है हमारे उसमें फ्लूइड कितना रहता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ पोर फ्लूइड. Unit weight of water does not vary, but the viscosity varies considerably with temperature changes. So yeah, that was a point. And next, it is not that much important, not asking exam. Then structural arrangement of soil particles. The permeability is greatly affected by the structural arrangement of soil particles and stratification of soil. तो stratification क्या है? Stratification यानी layers का formation कैसा है deposition के time पे. तो permeability जो है वो जो parallel है permeability, जैसे कि इसको पैरेलल है हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटिफिकेशन को, तो इसमें ज्यादा रहेगी परमेबिलिटी रेदर देन जो परपेंडिकुलर है. तो वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन में परमेबिलिटी हमारी परपेंडिकुलर होगी, यानी यहाँ से स्ट्रेट होगी. तो इसीलिए हमें यहाँ से स्ट्रेट होगी और यहाँ पे फिर पैरेलल हो रही है हमारी. तो फिर इसमें ज्यादा रहेगी परमेबिलिटी, इसमें ज्यादा रहेगी, इसमें कम रहेगी. Its permeability in horizontal direction is more as compared with the permeability in vertical direction. Entrapped air and organic impurities in the void obstruct flow and cause a reduction in permeability. तो अगर हवा वगैरह ज्यादा रही voids में तो इसकी वजह से हमारा permeability को reduction हो जाता है permeability में. तो जो sample होता है हमारा permeability के लिए, तो वो fully saturated होना चाहिए, पूरा पानी भरा होना चाहिए उसमें. और absorb water, fine grain soil have a layer of absorb water strongly attached to the surface. तो fine grain soils में क्या होता है ना, एक लेयर होती है absorb water की उनके सरफेस से अटैच्ड, बहुत स्ट्रांगली अटैच होती है. एब्जॉर्ब वाटर की जो लेयर होती है वो हिलती नहीं है, तो इसकी वजह से एक ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो हो जाता है, यानी पानी फ्लो नहीं हो पाता है इन द पोर्स में, और उसकी वजह से परमेबिलिटी भी कम होती है. शेप ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड ऑन शेप ऑफ एंगुलर पार्टिकल्स जो होते हैं जिसकी ग्रेटर स्पेसिफिक सरफेस एरिया है एज कंपेयर्ड with the round particles. तो एंगुलर पार्टिकल्स में सरफेस स्पेसिफिक सरफेस एरिया ग्रेटर होता है राउंडेड पार्टिकल्स से, तो उसमें फ्लो परमेबिलिटी का ज्यादा होगा. और फॉर द सेम वॉइड रेशियो, अगर वॉइड रेशियो सेम है, the soils with angular particles are less permeable than those with rounded particles.